Symbols in 80 atom sir, elements, and 20 names. elements you are told. You have tell hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, neon, sir, and sir, you have tell 20 elements. Okay, so have you now idea about the symbol of I element? learned 10. Yes, you have Sir, I learned Hydrogen. 10. Beta, please mute your mic. Arnav Jain will tell that what is the symbol of potassium. Yes, sir. You will tell that what is the symbol of potassium. Sir, I can't listen. Hear you. Sir, can I show? Sir, can I tell? Sir, can I tell? Sir, symbol Baloney of will tell. potassium. But sir, K. Sir, Sir, 19K. K. Sir, K. And sir, the atomic number is 19. Yes, The sir. atomic number is 19 and the symbol is K. That's good, beta. So you are not watching at your book now. No, sir. Okay. No, sir. Sir, you can see my video. Sir, I have learned. No problem. So if you had no idea about that, just we will be telling some more element also. So Okay, please, sir. okay. So please cooperate with me. I'll be telling. Okay. Okay, sir. Okay. Okay, sir. Yes. Sir, I have a periodic table at home. Sorry. Sir, I have a sir big periodic table at home that sir we will can learn the all the elements. No. You are just you have to just learn only 20. Sir, that's in my home also. So we can start. Okay, sir. Yes. So my screen is sharing or not? No, sir. Sir, till now you have not shared. Just wait. Now it is sharing. Yes, sir, it is clear. Okay, so from the last point, whatever I told you, okay. So whatever I told you, you will be just can you give me 1 minute, please? Just Okay. Yes, sure, no sir. problem, I'm just showing. Sir, take your all time. No, just 1 minute. Sir, take your time. So it's now visible. Yes, sir, now it's visible. Yes, sir. Okay, so please write some points Yes, after sir, that. now Whatever it I is. told you till 20. So please write the points. Symbol may be किसी ने सर एनोटेट कर दिया तो बहुत सारा सर किसी ने एनोटेट कर दिया. Okay. Symbol maybe this is सबसे बुरी क्लास 7 है, पता है. 6 के बच्चे भी ऐसे नहीं है, ना तो 8 के बच्चे, ना तो 9 के बच्चे, ना तो 10 के बच्चे. मैं 11 की भी क्लास लेता हूँ, 12 की भी क्लास, लेकिन सबसे बुरे बच्चे 6 7th में है. Because you are not allowing me to just to teach you सर सिर्फ something. कुछ बच्चे करते हैं सर, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे अच्छे भी हैं. सर यस सर Sir, please Yes, erase sir. that annotation. सर वी आर कुछ वेरी बच्चे करते हैं. नहीं, मैं यही तो चेक कर रहा हूँ, इसलिए तो कभी एनोटेशन सर को मेरे ऑफ नहीं लैपटॉप में करता. तो एनोटेशन का ऑप्शन भी नहीं आता. नो प्रॉब्लम. अभी लिखो. सबके लैपटॉप पे आता है सर, व्यू ऑप्शन आता है ना सर ऊपर, उसमें. सर जो भी अभी बोल रहा था सर उसका मतलब Beta, उसको पता ही please नहीं mute है. your mic. Otherwise, wait. I am just muting your mic. No problem. Because I told you number of time. Erase that annotation. सर we are looking at Beta, I am muting your mic. No problem. I'll mute you. Otherwise, just please wait. Please cooperate with me. Please write whatever I'm writing on the screen. Okay. So symbol may be derived from the first letter of the English name of the element. खाने को तो जल्दी बहुत भूख लग रही है. First letter बाबू शांत हो जाओ, ऐसे मत बोलो. of अरे English name. तो करो, बहुत भूख लग रही है. Beta, please mute your mic. First letter of the English name of the element. Okay. The second point is symbol may be derived. Firstly, write down. I'll tell you what is the meaning of this. Symbol may be derived from the first letter. The second point is क्लास में symbol may be derived from the first letter. Excuse me, sir. Please write down whatever I'm writing. I'll There tell is you. a big red line over there.
No problem, beta. A symbol may be derived from the first letter and the first letter and Love Trivedi, please mute yourself. but I am just muting all of you, no problem, because you are not cooperating with me. Just wait a minute, because all of you are not cooperating with me. I'll just unmute it after 5 or 10 minutes. So the thing was, okay. So this is the thing I was written. Symbol may be derived from the first letter and another significant letter of and another significant letter of another significant letter of the name of element. The third thing is symbol may be derived from their Latin names of the element. Their Latin names of the element. But I had written 3 points. Okay, please write down every point. I'm just telling you what is the meaning for this. So यहाँ पर पहले पॉइंट में लिखा है कि symbol may be derived from the first letter of the English name of an element. Second point में लिखा है symbol may be derived from the first letter and another significant letter of the name of the element. Third point है बेटा symbol may be derived from the Latin name of the element. तो पहले तो मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ. मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ अगर हो पाता है ये तो मे बी. ओके, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. आप क्वेश्चन पूछ. हाँ बोलो सर. ये सर लैटिन नेम्स मतलब सर. आई एम जस्ट टेलिंग यू एवरी पॉइंट. व्हाई आर यू जस्ट क्राइंग ऑल दैट? आई एम जस्ट टेलिंग यू एवरी पॉइंट बेटा. प्लीज वेट. We will be moving with one by one. Okay, so the first Sir, point what is the meaning of significant? Beta, please wait for the first point. I have not tell you anything in the first point. So please wait. I am just giving one by one now. This is the first point. This is the second point, and this is the third point. So I'll be moving with one by one. Now. I'll not left anything. I will tell you everything, whatever I written in the screen. So please, beta. So symbol may be derived but I don't want to mute you, yaar. Please mute yourself, yaar. What are you doing, yaar? This is not the second class. This is not the first. This is not class 1. This is not the class 2. This is not KG class. This is your 7th class. So not 6 class is not like that. I'm also taking the class of 6 also, and 7 also, 8 also, 9 also, 10 also, 11 also, and 12 also. But 6 is not like that. But you are just whatever. I'm just trying to tell you. I'm just unmute you just because of that to make the session interactive. So what are you doing, beta? I'll tell you everything. No, I'll not left you anything. So please try to cooperate with me. The first point is symbol may be derived from the first letter of the English name of the element. इसका मतलब ये होता है कि जो सिंबल होता है ना, उसको हम किसी भी नाम के फर्स्ट लेटर से लिखते हैं. अब इसको आप समझने की कोशिश करना. जैसे कि नाइट्रोजन है, ठीक है. अब नाइट्रोजन का हमने क्या लिखा? सिंबल N लिखा, क्योंकि ये फर्स्ट लेटर हमने लिख दिया इसका उठा करके, तो ये हो गया इसका सिंबल. ठीक है. अब जैसे कार्बन था बेटा, तो कार्बन का क्या हो गया? सीधे सीधे हमने फर्स्ट लेटर को उठाया और इसी को लिख दिया सिंबल के रूप में.
तो ये बन गया बेटा कार्बन। अगर हमने लिखा ऑक्सीजन के बारे में, ठीक है, तो ऑक्सीजन का हमने फर्स्ट एलिमेंट लिया या फर्स्ट लेटर लिया, इसका हमने कर दिया O, ठीक है। बोरॉन। जैसे हमने बोरोन का किया, तो बोरोन में क्या किया बेटा, सीधे B का लिया और सीधे यहाँ पर B लिख दिया। सर हीलियम आल्सो, सर हाइड्रोजन सर आल्सो। फॉस्फोरस। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। Okay, no problem, beta. Please mute yourself. I know all these things, and I'm just telling you about all that. So please mute yourself. This is the first point. I'm just telling you for your understanding. If anyone is not getting it, then only you will tell me. Okay. The second point is there that symbol may be derived from the first letter and another significant letter of the name of the element. The another significant letter means just after the first letter, like I'm just writing here lithium. Okay, so lithium, so this is the first letter, so just like the first पूरी बांटी तक दे डाल। ओ गिर जाएगी मोटरसाइकिल, बस स्टैंड कमजोर है। I cannot यार, I cannot। and क्या कर रहे हो आप सब यार। So the first letter was like चलो फर्स्ट में हमने क्या किया कि नाइट्रोजन को N कर दिया, ऑक्सीजन को O कर दिया, कार्बन को C कर दिया, बोरॉन का B कर दिया। यहाँ पर हमने सीधे फर्स्ट लेटर को लिया, ठीक है। दूसरा क्या था, सिंबल में बी डिराइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर एंड सिग्निफिकेंट अनदर सिग्निफिकेंट लेटर। अनदर सिग्निफिकेंट लेटर का मतलब हुआ कि पहला लेटर तो हमें लिखना ही लिखना है, अनदर सिग्निफिकेंट मतलब जस्ट दूसरा वाला, ठीक है। तो लिथियम का हमने पहला लेटर तो लिखा L, ठीक है। अब जस्ट दूसरा वाला क्या है बेटा, यहाँ पे I, तो what will I write? This is Li, okay। अब जैसे क्लोरीन था, ठीक है, तो हमने क्लोरीन का Cl लिखा। ज्यादातर केसेस में सिग्निफिकेंट वाला होता है, देखो जैसे हमने स्कैंडियम लिखा, तो स्कैंडियम का आप देखोगे कि Sc हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे और भी एलिमेंट्स आप देख सकते हो, जैसे नियॉन है, तो नियॉन का हमने पहला लेटर तो लिखा ही लिखा N, और जस्ट आफ्टर दैट व्हाट वाज दैट, हमने क्या किया, दूसरा पॉइंट लिखा सीधे। जस्ट नियॉन में क्या था, पहले N था, तो N को हमने लिखा, उसके जस्ट बाद E आता था, तो हमने E को लिखा। तो हमने क्या किया, सिग्निफिकेंटली जस्ट अगला लेटर ले लिया। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे, तो सिंबल में बी डेराइव्ड फ्रॉम देयर लैटिन नेम्स ऑफ द एलिमेंट। हर एलिमेंट के पास मान लो नहीं होता लैटिन नेम, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके पास लैटिन नेम होता है। जैसे कि सोडियम को आप देखोगे, तो सोडियम को हम डायरेक्टली यसो या फिर यस ऐसे नहीं डिनोट करते, बल्कि इसको हम डिनोट करते हैं Na से। आपने ये देखा हुआ है कि हम इसको डिनोट करते हैं Na से। क्यों डिनोट करते हैं, बिकॉज इसके पास कुछ लैटिन नेम होता है और जो Na से स्टार्ट होता है, और उसके नाम के आगे से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमने दोनों रूल्स को फॉलो किया है। पहला रूल है कि पहला लेटर तो हम लिखेंगे, उसके साथ साथ हम सिग्निफिकेंट जस्ट सेकंड अनदर वर्ड को हम लिखेंगे, अनदर लेटर को लिखेंगे। तो हमने अभी मैं इसका लिखवा रहा हूँ सबका लैटिन नेम आपको, लेकिन जब जो भी सोडियम का लैटिन नेम होगा उसका हमने फर्स्ट लेटर लिखा N, उसके जस्ट बाद हमने अगले लेटर से उठाया A और उसको हमने लिख दिया। तो हमने यहाँ पे 3 पॉइंट क्लियर किया। क्या किसी को कोई डाउट है बेटा? मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। बेटा किसी को कोई डाउट है? Sir, I have a doubt. Yes sir, I have one doubt. बोलो। Sir, magnesium has Mg. So, ma'am, so sir, it will come in the second property. सर पोटेशियम It will come Mn. बेटा मैग्नीशियम का क्या बोला? Sir, वो बोल रहा है कि सर मैग्नीशियम जो होता है सर उसका सर Mg क्यों होता है सर, उसका सेकंड वर्ड क्यों नहीं होता? तो सर वो सर सेकंड वाले में ही आएगा ना? बेटा हर किसी के साथ केमिस्ट्री में एक्सेप्शन होते हैं, मुझे पता है, आपको भी पता है एक्सेप्शन होते हैं। तो जरूरी नहीं कि जस्ट अगला लेटर लिखना है। आपको मैंने 3 रूल लिखा है, ज्यादातर नोटेशंस ऐसी आएंगी, कुछ नोटेशंस अलग भी आएंगी, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट वही चीज लेके बैठोगे आप, आपको जस्ट सिंबल याद करना है। और आपको मैंने रूल्स इसलिए लिखा है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि तो सर पोटेशियम का सर बिल्कुल अलग होता है सर उससे के। क्या बेटा? सर पोटेशियम का सर उससे बिल्कुल अलग होता है सर के। बेटा क्योंकि पोटेशियम का जो लैटिन नेम है वो कैलियम होता है, ठीक है। अब मैं वही लिखाने जा रहा हूँ, सबका अलग अलग लैटिन नेम लिखाने जा रहा हूँ।
अब Sir, पोटेशियम and का what about सर अभी chlorine? सर आप इसको रेज Sir, मत करो। chlorine spelling is CHL. So why Cl is used? हाँ वैसे ही मैं बताने वाला था वही बेटा कि मैग्नीशियम जैसे है ना कि हमने क्या किया यम एजी को ना लिख के यम जी डायरेक्ट लिखा, वैसे क्लोरीन में भी होता है सीएच से स्टार्ट होता है येलो RIN, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं सीधे Cl लिखते हैं। तो बेटा हर किसी में नहीं होगा, ये एक्सेप्शन होते हैं और आपको केवल 3 पॉइंट याद करने क्योंकि ज्यादातर आपका कवरअप जो होगा वो इसी के बेस पे होगा। और पहले कवरअप में क्या है कि Excuse पहला me, एलिमेंट sir. दूसरे, हाँ बेटा बोलो। सर क्या हम लोग इन एलिमेंट्स के सिंबल्स को देखकर हम जज कर सकते हैं कि ये अगर पोटेशियम का जैसे के होता है तो हम बोल देंगे कि इसका जो नेम है वो लैटिन पे पड़ा है क्योंकि ये पोटेशियम से पी से नहीं बन रहा है, और नाइट्रोजन है वो N है तो उसका फर्स्ट लेटर से बना है। ऐसे हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते नहीं बेटा नहीं कर separate सकते, हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये जो भी रूल्स बना के ऑलरेडी पीरियडिक टेबल में लिख दिए गए हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपको नहीं पता है ना मुझे पता है कि उसको कैसे बनाया गया। पीरियडिक टेबल में एक बार बन गई पीरियडिक टेबल, उसके बाद उसको चेंज नहीं किया गया, जैसे उसको रख दिया गया वैसे रख दिया गया। किसी का कुछ स्पेसिफिक आइडिया था, जिसने बनाई उसका कुछ स्पेसिफिक आइडिया रहा था, उन्होंने अपने अकॉर्डिंगली उसको बनाई है, लेकिन हमें वो चीजें नहीं जाननी है कि क्यों उन्होंने ऐसा किया। और बस हाँ वैसे मैं ये आइडिया अपन को पता नहीं है सर साइंस को। बेटा अपन को भी नहीं पता, मेरे को तो नहीं पता आइडिया कि उन्होंने किस आइडिया पे वो बनाया था। हाँ लेकिन ये पता है कि ज्यादातर की जो एलिमेंट है उनके जो आइडिया लेने का जो कॉन्सेप्ट है वो किस आइडिया पे बेस्ड है। हमने 3 पॉइंट में आपको बताया हुए हैं कि या तो पहला लेटर उन्होंने लिया, या तो पहला लेटर और जस्ट अगला लेटर लिया, और या तो लैटिन नेम का पहला लेटर लिया। तो ये पहला या दूसरा लेटर लिया, तो वो आपको मैं लैटिन नेम पहले लिखा रहा हूँ, उसके बाद से बात सर उनका कुछ सर वो हो सकता है सर आइडिया। उनका कुछ आइडिया हो सकता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने अपने आइडियाज हैं उसके पीरियडिक टेबल को लिखने के। अभी आप लैटिन नेम लिखो, ठीक है? सारे एलिमेंट्स जो भी लिखा बेटा सबने लिख लिया, इसको राइट कर लिया। सर ये वाला Yes, सर जो साइड में लिखा है आपने सर वो हमको लिखना है कैलियम और ये सब। बेटा वो मैं लिखाने जा रहा हूँ, उसकी टेंशन मत लो आप, ठीक है? ओके सर। इज देयर एनी प्रॉब्लम व्हाटएवर आई टोल्ड यू? सर मैंने सर पहले भी पूछा था सर लैटिन का मीनिंग। बेटा लैटिन नेम एक ये लैटिन जैसे लैटिन एक लैंग्वेज होती है, तो वो केमिस्ट्री का लैटिन नेम उन्होंने लैटिन ने बनाई है, तो वो लैटिन लैंग्वेज बोली जाती है उसको बेटा। अब जैसे पारा को बोला गया ना, जैसे मरकरी होता है, तो मरकरी के लिए उन्होंने हाइड्रोगेरियम होता है तो उसको Hg लिखा, तो हाइड्रोगेरियम इज द लैटिन नेम फॉर दिस मरकरी। अब जैसे पोटेशियम का है तो वो कैलियम है, तो वो भी एक लैटिन नेम है उस चीज का, ठीक है? तो आपको याद रखना है उसको, जो भी मैं लिखाऊंगा लैटिन नेम वो आपको याद रखना है। आपको मैं सीरीज लिखा दे रहा हूँ, 7-8 एलिमेंट है, उसको याद रखना बस, ठीक है? राइट करो, पहला पोटेशियम। Sir, हेलो every सर मरकरी सर की हम फॉर्म सर क्या होती है? अपनी जो सर मॉड्यूल है यस सर हेलो? हमारी जो सर मॉड्यूल है सर उसमें सर हम हाइलाइटर की हेल्प से सर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से मार्क कर सकते हैं सर, जो हमने नोटबुक में भी लिखे हैं सर, जिससे सर अपन एक बार अगर अपन को रिकैप करना हो तो सर मॉड्यूल से ही कर सकें। बेटा मॉड्यूल्स को आप यूज नहीं करेंगे अभी, केवल आप मॉड्यूल्स को घर पे पढ़ेंगे। जो भी मैं क्लास में पढ़ाऊंगा आप उसको पूरा पूरा राइट करेंगे। आपको मॉड्यूल से हाइलाइटर को मार्क नहीं करना है, बिकॉज अभी मान लो 3 पॉइंट आपके मॉड्यूल से आ रहे हैं तो आपको 5 पॉइंट एक्स्ट्रा भी मिलेंगे, तो आप उसमें कंफ्यूज होगी कौन से 3 पॉइंट उसमें से कौन 3 पॉइंट एक्स्ट्रा है। तो आप प्लीज वो सब मत करो, आपको जो भी क्लास में लिखा है लिखो। 1 घंटे की क्लास होती है बेटा, 1 घंटे में लिखना, उसमें क्या आपको दिक्कत हो जा रही है? Sir, every element doesn't has its Latin name. नो, एवरी एलिमेंट डजंट हैज लैटिन नेम। जिनका है उनका बता रहा हूं, ठीक है? प्लीज राइट अब आप पोटेशियम के आगे क्या लिखवा रहे हैं? मैं मैंने पोटेशियम सर वो सर अभी हेलो हाइलाइटर सर का पूछा तो मरकरी सर की फॉर्म क्या मेरा नेटवर्क होती चला है? गया सर, आप बता सर आपने क्या बोला? लिक्विड या सॉलिड? क्या बेटा? सर मरकरी किस फॉर्म में होता है? गैस, Mercury लिक्विड या सॉलिड? is always in the liquid form at its normal temperature. I'll tell you when I'll discuss the mercury also. Mercury एक मेटल है, फिर भी एक ये एलिमेंट के फॉर्म में हमेशा जब नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है तो ये लिक्विड होता है बेटा, ठीक है? इसको याद रखना हमेशा। Yes sir, there are 5 liquids in the periodic table. नाम बोलो बेटा। सर गैलियम, ओके मरकरी, ओके सर ब्रोमीन, ओके, सर एंड सर 1 मिनट सर गैलियम, लिथियम। नो प्रॉब्लम। You have to just remember always for mercury, not more than that. Sir, I think that mercury was in like a jelly form and liquid also like a fluid. Sir, I know about sir first one. It's also
But I'm just muting you. Solid form. I'm just muting you. Please write down whatever I'm writing here. I'll also take the doubt class also. Beta, please move forward with your syllabus also, na? Because everyone is asking the question every time, so it is not possible to move forward. Beta, please be cooperate. I'll give you time to ask the question. Okay? Just write down whatever I'm writing here. So the thing is. एंड वन स्टूडेंट वाज आस्किंग अबाउट कि वो क्या हाइलाइटर का यूज कर सकता है, तो बेटा मेरा सजेशन है कि आप हाइलाइटर का यूज मत करो, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि 4 पॉइंट आपके पॉजिटिव होंगे जो आपके बुक से होंगे या फिर आपके मॉड्यूल से होंगे, और 10 पॉइंट बाहर से होंगे, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। अभी तो चलो मान लो मैं अभी स्टार्ट में वो चीजें नॉर्मल पढ़ा रहा हूँ तो आपको बस वो चीजें मिल रही हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। सो प्लीज 1 घंटे की क्लास होती है, उसमें आपको जो मिले वो लिख लो। 36 मिनट की क्लास हो चुकी है, मैंने केवल 10 लाइन लिखाई है बेटा, ऐसे क्लास कैसे चल पाएगी आपकी, बताइए। सो प्लीज राइट डाउन। आपको मैं एक एक चीज समझाऊंगा, बट प्लीज राइट डाउन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं एक भी क्वेश्चन आपका जान ही नहीं दूंगा, मैं डाउट क्लास भी एक्स्ट्रा आपकी ले लूंगा, ठीक है। अभी लिखो आप नेम ऑफ एलिमेंट और केमिकल सिंबल एंड द थर्ड थिंग इज नेम ऑफ element in Latin. ओके, ज्यादातर लैटिन लैंग्वेज में लिखे गए हैं बेटा, कुछ ऐसे भी चलो मैं यहां लिखता हूं, लैंग्वेज ही लिख देता हूं, कुछ ऐसे भी हैं जो डिफरेंट लैंग्वेज में भी हैं, तो उनको भी मैं लिखा दूंगा, आप देख लेना एक बार। ज्यादातर तो लैटिन लैंग्वेज में भी है, 1-2 एलिमेंट ऐसे होंगे जो डिफरेंट लैंग्वेज में भी होंगे, तो उनको भी लिखा दूंगा। वैसे मैं आपको मॉड्यूल में भी मिल जाएगा वो। तो पहला लिखना पोटेशियम, दूसरा लिखना आयरन, तीसरा है कॉपर, चौथा है सिल्वर, पांचवा है टिन, छठवा है गोल्ड, सातवां है मरकरी, आठवां है लेड, फिर 9वां है बेटा टंगस्टन। ओके, केमिकल सिंबल जो है पोटेशियम का के होता है, आयरन का Fe होता है, कॉपर का Cu होता है, और सिल्वर का Ag होता है, टिन का Sn होता है, गोल्ड का Au होता है, उसके बाद लेड का या मरकरी का होता है Hg, लेड का होता है Pb, और टिन का होता है बेटा W, ठीक है। अब नेम ऑफ एलिमेंट, अभी हमें नेम भी लिखना है उनके, तो नेम सबसे पहले के का लिखना और उसकी लैंग्वेज लिखनी, किस लैंग्वेज में वो लिखा गया है। तो सबसे पहले तो नेम लिखना, नेम है बेटा कैलियम, पोटेशियम का लैटिन नेम है कैलियम, और उसको हम लैटिन लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है। लैटिन इज अ लैंग्वेज, एक फॉर्मेट होता है, भाषा होती है जो केमिस्ट्री लिखने के एक तरीके को बताती है। उसके बाद अगला है फेरम, ठीक है, दिस इज आल्सो ए लैटिन नेम और लैटिन लैंग्वेज नेम। द थर्ड वन इज क्यूप्रम, क्यूप्रम के अंदर क्या आएगा बेटा, ये भी लैटिन नेम है, ठीक है। फिर आपका आता है जो सिल्वर है, सिल्वर को का लैटिन नेम होता है अर्गेंटम, याद रखना इसको, इसीलिए हम कहते हैं, ये भी एक लैटिन नेम है। और देखो बेटा पोटेशियम के स्टार्ट के को इन्होंने डाल दिया केमिकल सिंगल में, फेरम के स्टार्ट के 2 वर्ड लिए हैं, या फॉर ई, ये भी एक रूल का फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया था अभी, तो या फॉर ई हो गया। क्यूप्रम का इन्होंने सीधे Cu ले लिया है, ठीक है। उसके बाद अर्जेंटम का इन्होंने ऐसे ऐसे अभी क्लोरीन में छूट रहा था या मैग्नीशियम में छूट रहा था, वैसे आर को छोड़ करके सीधे Ag ले लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं Sn की, तो इस Sn को बोलते हैं स्टेनम,
अब इन्होंने क्या किया, 2 वर्ड बीच में छोड़े और यसन को लिया है। तो बेटा ये भी एक लैटिन नेम है। एक तो बताने का फॉर्मेट है बेटा, बट आपको पूरा पूरा याद रखना है ऐसे ही, ठीक है। इसको बोलते हैं यसन। इसने क्या किया, 2 को बीच में छोड़ा और 1 को एक्स्ट्रा ले लिया। बस कैसे लिया है वो बताने का तरीका आपको जानना है बस। और आगे है गोल्ड। गोल्ड का जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं ऑरम, AURUM। आरम जो होता है वो भी एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। फिर आता है आपका पारा। पारा भी बोलते हैं इसको हिंदी में, और इसको मरकरी भी बोलते हैं। और इसका जो नाम होता है लैटिन होता है, और वो लैटिन किस भाषा में है, लैटिन भाषा में है। उसको पहले नाम लिखना, हाइड्रोगैरम, सॉरी HYDRO, हाइड्रोगायरम, ओके। हाइड्रोगायरम ये भी एक लैटिन वर्ड है, लैटिन में ही आता है ये, लैटिन लैंग्वेज में। फिर आगे लिखा हुआ है पीबी। पीबी को बोलते हैं प्लम्बम, PLUMBUM, दिस इज प्लम्बम। ये भी एक लैटिन वर्ड है, ओके। इसको भी लैंग्वेज जो है वो क्या है, लैटिन, ओके। अगला फॉर्मेट है टंगस्टन का। टंगस्टन को W से डिनोट करते हैं, क्योंकि इसका जो फॉर्म होता है वोल्फ्राम होता है। और ये क्या है, लैटिन वर्ड है, ओके। बेटा किसी को कोई चीज नहीं समझ में आया तो बताना प्लीज। आई एम जस्ट अनम्यूटिंग यू, नो प्रॉब्लम। बोलना बेटा। सर बोलो बेटा। सर आपने जो गोल्ड का सर नेम ऑफ द एलिमेंट लिखा है वो क्या है लैटिन में? ऑरम, ऑरम बेटा, AURUM, ऑरम। सर मरकरी का तो लैटिनाइज्ड ग्रीक होता है। यस सर, लैटिन जेड ग्रीक होता है सर, मरकुरी की लैंग्वेज। बेटा वो Yes, sir. लैटिन, बेटा वो लैटिन ही होती है। आपके मॉड्यूल में लैटिन एंड ग्रीक लिखा है, आपको याद करना तो ऐसा याद कर सकते हो। और सर टंगस्टन जर्मन का होता है। ओके हाँ, टंगस्टन वाला, हाँ सॉरी, टंगस्टन वाला थोड़ा सा गलत लिखा मैंने। टंगस्टन जर्मन नेम है, बाकी जो बेटा हाइड्रोगेरम का जो होता है वो लैटिन ही है। वो लैटिन ग्रीक वो मिक्स बोला गया है उसमें, लेकिन उसको लैटिन ही लिखना। लेकिन हाँ टंगस्टन का जो होता है वो क्या होता है, जर्मन। Suryanshi, sir, she is annotating. ओके नो प्रॉब्लम। बेटा किस सबने लिख लिया अभी इसको? नो सर, बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी इसमें? मैं आखिरी वाला लिख रहा हूँ। No, sir. Sir, there is a problem, sir. It has been turned into a box now, so it is okay. Slope has written on my screen. No problem, beta. Just write it down. Okay. Sorry, sir, but by mistake. No. It's your job, beta. Just do it. A good student, never mind. That's right, beta. So, have you written all these? Because बेटा इसमें क्या हुआ है कि कैलियम का जैसे के अकेले ले लिया, इन्होंने फेरम का क्या किया, एफ ले लिया, स्टार्ट के 2 वर्ड। अब मुझे सर इसका सर थोड़ा लॉजिक समझ में आ रहा है। हाँ, इस लॉजिक बेटा कुछ नहीं है, आपको याद करने का तरीका बस इतना, आपको बस एक चीज पता होनी चाहिए कि बेसिकली आया कहां से AG। बस इसको बताने का तरीका यह है कि ये अर्जेंटम का एक वर्ड है, A और G को उसमें से लिया गया है। बस बताने का हमारा मतलब केवल यही है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको जरूरी है उसको याद करना या उसको जानना कि क्यों कैसे क्या हुआ। बस आपको तो सीधे सिंबल याद करना है, उसमें ज्यादा कुछ जानना ही नहीं है। हाँ, नेम ऑफ द एलिमेंट में अभी आपको जैसे लैटिन वर्ड्स हैं, केवल लास्ट वाला सर वोल्फ्राम सर जर्मन वर्ड है। बेटा ये जैसे साइंटिस्ट होते हैं, जैसे अब मतलब कि कैलियम के कोई साइंटिस्ट थे, तो मान लो ये जब सर्च चल रही होगी तो मान लो लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया, क्योंकि लैटिन साइंटिस्ट तो ही रहे होंगे उन्होंने, जिनके यहाँ लैटिन लैंग्वेज चलती होगी।
तो उन्होंने अपना लैटिन लैंग्वेज में लिख दिया। अब कोई साइंटिस्ट ऐसा था बीच में जिन्होंने टंगस्टन की सर्च की, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट की सर्च हुई है बेटा, कोई एक दिन ऐसा नहीं आया कि एक दिन ऐसा आया और सारी की सारी 118 एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल लिख दी गई। बेटा एक एक एलिमेंट की खोज हुई है, पहले कुछ एक एलिमेंट थे, धीरे धीरे करके लिखी होगी। हाँ धीरे धीरे करके लिखी है। मान लो कोई इंग्लैंड में सर्च हुई होगी, किसी की अमेरिका में सर्च हुई होगी, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट देशों में और हुई सर होगी। अब जाके सर वो फिर पूरी हो गई है सर। अपने अभी पूरी नहीं हुई है बेटा, 118 थे ना, अभी 118 से 119 हो गए बेटा, वो चल रही है, हमेशा सर्च चलती रहती है बेटा। ये जो केमिस्ट्री सर कभी खत्म नहीं होगी डाटा। अब नहीं, हो सकता है कि बेटा हो सकता है कि जब आप 50 साल के या 60 साल के हो जाओ ना, उस वक्त तक आपको पीरियोडिक टेबल में 200 एलिमेंट दिखाई पड़े, मे भी ऐसा हो सकता है। आप 50-60 साल के हो जाओगे तब तक 40-50 साल में 10-20-50 और सर्च हो जाएंगे। तो बेटा ये धीरे धीरे चलती रहती है। अब जैसे मान लो 1850, सर जिसका नया इन्वेंशन होते जा रहा है सर वो उसमें ऐड होते जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल 118 जैसे अभी है ना, तो उसमें एक एक एलिमेंट पहले। क्या बेटा क्या बोल रहे हो बेटा? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है। ओके ओके, सो बेटा समझ में आया क्यों कैसे सर बोल रहा था, कुछ पूछ रहा था। कोई बात नहीं। अभी बेटा समझ में आ गया ना कैसे इसको लिखा गया? यस सर। क्लास में कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही? नो सर। ओके ओके, सो अभी हम सर, क्या बेटा बोलो? सर जब मेनली फर्स्ट पीरियोडिक टेबल लाया था 1880 में, तब उसमें केवल 18 एलिमेंट्स थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल पहले बहुत कम एलिमेंट थे, 18 एलिमेंट थे, फिर धीरे धीरे बढ़ते गए। उसके बाद उसमें जब लॉन्गेस्ट पीरियोडिक टेबल में कन्वर्ट हुई है तो अभी 118 है, और अभी भी सर्च चल रही है, मे बी 2-3 की सर्च हो चुकी है, उनको भी लाना है। जब मतलब कि कोई नया एलिमेंट, अब मान लो कोई भी रिसर्च कर रहा है, अब मान लो कोई भी साइंटिस्ट, मान लो XYZ, मान लो रामू नाम का कोई साइंटिस्ट है, अब वो मान लो सर्च कर रहा है, ठीक है। अब उसने कोई नया एलिमेंट दिखा, कहीं पे पड़ा हुआ था, वो मेटल से रिलेटेड था या कोई एलिमेंट था, अब उसने रिसर्च करी कि क्या ये 118 एलिमेंट से मिल रहा है, क्या 118 एलिमेंट जो पाए जाते हैं उसके अंदर क्या ये कहीं पे भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं। जब उसने देखा कि इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो उसने इस पर रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी। जब रिसर्च करनी स्टार्ट की तो पता लगा ये उस पार्टिकल से बना है, उस पार्टिकल में उतने एटम हैं, उस एटम में उतनी चीजें हैं, उसका वेट इतना है, उतना ऐसा मतलब सर्च होने लग गई। अब सर्च होते होते वो एक कंक्लूजन पे आ गया कि हाँ ये कंक्लूजन मिल सकता है, हाँ इससे एक एलिमेंट नया बन गया है। अब उसको क्या किया बेटा कि पीरियोडिक टेबल में रखने के लिए आगे चल के सर जो मॉड्यूल में लिखा है सर उससे सर और आप सर एक्स्ट्रा भी पढ़ाएंगे सर? यस बेटा, आपको क्वेश्चंस एक्स्ट्रा बताएंगे, मॉड्यूल्स में जो भी है उसको एक्स्ट्रा बताएंगे। अभी तो बेटा जनरल केमिस्ट्री चल रही है, आपके जनरल भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये चीजें पता होनी चाहिए। इसमें मैं आपको लैटिन नेम में 10-12 एक्स्ट्रा बता दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मान लो कोई भी लड़का है आपकी क्लास में, आपको याद करने में यही दिक्कत होगी, मान लो कुछ और लैटिन नेम में प्रेजेंट है, मैं भी अपनी बुक से निकाल के उसको आपको बताऊं और आपके सिलेबस में नहीं है, तो फिर क्या मतलब निकला बेटा उसको? मैं तो क्लास इसलिए लेता हूँ क्योंकि आपको पता चले। अब मॉड्यूल तो आपके हाथ में ऑलरेडी है, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें उसमें नहीं पता चल पाएंगी और बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा बतानी पड़ती हैं, जैसे अभी पीरियोडिक टेबल की बात बताई आपको, तो ये सब चीजें। हाँ बोलो बेटा। सर डीपीक्यू के लिए सर कोई नोटबुक नहीं बनानी ना? नहीं बेटा, उसका डीपीपी के लिए आपके रिजल्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी डिक्लेयर हो जाएंगे और मैं उसको आपको डिक्लेयर करके फिर आपको बताऊंगा और क्लास में अनाउंस भी करूंगा किसमें से सर इस क्लास के बाद सर आपको सर डीपीक्यू भेजोगे क्या? बिल्कुल भेजेंगे बेटा, आप आगे लिखो। तो अब हम आते हैं डाल्टन्स थ्योरी पे, ठीक है। मैं म्यूट कर रहा हूँ, प्लीज सुनना, ठीक है। आते हैं डाल्टन्स थ्योरी पे। देखो डाल्टन का एटॉमिक मॉडल, एक आपके इसमें कॉपी में आगे लिखना है आपको, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देखो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, पहले बार हेडिंग डालो आप, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो बेटा हुआ क्या कि जैसे एक एलिमेंट की, जैसे मान लो किसी एटम की सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ एटम हुआ। अब अगर एटम की सर्च की गई तो एटम की सर्च, बेटा एक चीज तो आपको पता है कि जो एटम होते हैं वो कभी भी कहीं देखे नहीं जा सकते, तो नॉर्मली हर किसी न किसी साइंटिस्ट ने उसको कैसे न कैसे प्रेडिक्ट करके बताया होगा। अब जैसे 11th क्लास में जाओगे तो आपको नए एटम्स के बारे में पता चलेंगे, जैसे नई चीजें पता चलेंगे कि सबसे पहले डाल्टन ने खोजा, फिर उसके बाद थॉमसन ने खोजा, फिर रदरफोर्ड ने खोजा, अलग अलग कंक्लूजन आए, उन कंक्लूजन को कंक्लूड करके नई चीजें बनी, कि उस कंक्लूजन से निकाल करके उन्होंने ऑल ओवर बताया कि एटॉमिक थ्योरी है क्या।
तो सबसे पहले किया क्या बेटा कि एटॉमिक थ्योरी को जानने के लिए सबसे पहले उन्होंने कंक्लूड किया टॉपिक्स को, ठीक है। तो जैसे डाल्टन क्या हुआ कि एक, जैसे मान लो कि हमें पता है कि एटम जो होता है बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। अब डाल्टन ने सबसे पहले रिसर्च करनी स्टार्ट करी कि क्या हो सकता है एटम। अब हमें आज अगर पता है तो बहुत सारे साइंटिस्ट मिलकर के इसको बना चुके हैं। अब डाल्टन जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट रहे होंगे, मान लो सबसे पहले एटम आया, तो सबसे पहले क्या हुआ कि डाल्टन या फिर कोई और साइंटिस्ट ही था, उन्होंने सबसे पहले इस पर रिसर्च करनी स्टार्ट करी। अब इसको रिसर्च करी उन्होंने किसी न किसी तरीके से। अब कोई रिसर्च करने का कोई ऐसा तो जरिया था नहीं कि माइक्रोस्कोप लगा के डायरेक्टली इसको देख लिया और बता दिया कि बेटा इसमें हाँ इतने पार्टिकल हैं, ऐसा है और ये होगा। बेटा उस माइक्रोस्कोप से वो दिखता भी नहीं था और नॉर्मली वो विजिबल ही नहीं है पार्टिकल, तो जरूर कोई ना कोई ट्रिक लगाई होगी, कुछ ना कुछ किया होगा। वैसे 11th क्लास में आपको बताया जाएगा कि क्या किया था एक्चुअली, लेकिन अभी आप जानो कुछ ना कुछ किया होगा, कुछ ना कुछ ट्रिक लगाई होगी कि कैसे इसको सर्च कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उन्होंने थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा की होगी, मान लो उन्होंने 5 पॉइंट इकट्ठा कर लिया, 5 पॉइंट 10 पॉइंट, ठीक है। और उन्होंने ओवरऑल पेश किया उसको रिसर्च को कि भैया हमने एक एटम सर्च किया, एटम के बारे में जानकारी इकट्ठा करी और हमको ये 10 पॉइंट मिले हैं और हमें लगता है ये बात सही है। तो अब यहाँ पर कुछ पॉइंट सही होंगे, कुछ पॉइंट गलत होंगे। जो पॉइंट 4-5 लोग मिलकर के देखेंगे और वो पॉइंट बिल्कुल ही उनको लग रहे होंगे, तो वो इसकी मिस्टेक हो जाएंगी डाल्टन की, उसको बोलेंगे कि डाल्टन की मिस्टेक्स हैं। और जो पॉइंट बिल्कुल वैलिड लग रहे होंगे उसको ये प्रूफ कर ले जाएंगे, लैबोरेटरी में ले जाके दिखा देंगे, वो बोलेंगे कि हाँ भैया डाल्टन ने ये चीज सर्च कर ली है, अब ये 5 पॉइंट 6 पॉइंट जो है ये एटम के बारे में बिल्कुल कंफर्म है। तो 5-6 पॉइंट डाल्टन बोल देगा, मान लो वो चीज लेबोरेटरी में चेक हुई और लेबोरेटरी में पता चल गया कि हाँ भैया सारे के सारे पॉइंट जो बोल रहा था और सारे के सारे जो कंक्लूजन दे रहा है, मतलब ओवरऑल जहां से प्रेडिक्शन दे पा रहा है कि ऐसे ऐसे करो ऐसे ऐसे करो, तो ओवरऑल चीजें उसको क्लियर हो पा रही है और सब लोग समझ पा रहे हैं कि हाँ वही चीज है जो ये बता रहा है। इसका मतलब डाल्टन ने जो दिया वो सही है, फिर उसका मतलब जो भी चीज निकल करके आएगा उसको वैलिड माना जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है बात में क्या बोल रहा हूँ? प्लीज बताना, रेज हैंड करने वाले भी बताना। सर डाल्टन एक फिलोसोफर थे या फिर एक साइंटिस्ट? सर बेटा बोलो। हाँ सर मुझे सर ये समझ में नहीं आ रहा सर। सर आपने जो समझाया वो समझ नहीं आया। एक्सक्यूज मी सर। ओके बेटा, और किसी को क्या क्या प्रॉब्लम है? सर मुझे समझ में नहीं आया सर। सर मुझे भी नहीं आया सर, ये नोटबुक में भी नोट नहीं होगा सर पूरा। उसको नोट नहीं करना बेटा, मैं आपको जानने के लिए बता रहा हूँ, मैं नोट करवाऊंगा। सर ये डाल्टन जो बोला है सर, ये तो बेटा मैं फिर से बता रहा हूँ, आप टेंशन ना लो। आपकी चलो म्यूट में माइक नहीं, मैं माइक को म्यूट नहीं करूंगा, मैं फिर से बताऊंगा। हाँ बोलो बेटा। सर डाल्टन एक फिलोसोफर थे, साइंटिस्ट था? ओके सर। ओके सर। सर प्लीज ये बता दें सर, ये डाल्टन है कि डेल्टन? बेटा अभी मैं पूरा बताऊंगा हुआ क्या एक्चुअली। डाल्टन ने पहले एटम के बारे में डिस्कवर किया या इंडियन आपने पहले थ्योरी निकाली? आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। बेटा अभी भी आवाज नहीं आ रही है। What is written this miss? ओके मैं एक एक चीज बता रहा हूँ, आप टेंशन ना लो, ठीक है। एक एक चीज मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना, नहीं आया तो बताना, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, मैं स्टोरी बता रहा हूँ आपको, एकदम अच्छी स्टोरी बता रहा हूँ, आप प्लीज ध्यान से सुनना, आपको समझ आ जाएगी। मैं लिखाऊंगा तो वो आपके मॉड्यूल में भी होगा वैसी चीजें, और मैं कुछ एक्स्ट्रा लिखाऊंगा तो भी लिख लेना, लेकिन अभी आप समझो कि हुआ क्या। देखो बेटा, सबसे पहले तो डिस्कवरी ऑफ एटम किया गया। सबसे पहले क्या था? डिस्कवरी ऑफ एटम। ये पता लगा लिया गया, डिस्कवरी ऑफ एटम का मतलब इट मींस एटम एग्जिस्ट। सर ये इसी के आगे से लिखना है सर। ये आपको इसको आप छोड़ दो, मैंने बताने की कोशिश की, आपको समझ नहीं आया तो मैं फिर से राइट करके बताऊंगा, इसको आप छोड़ दो, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आप ध्यान से, बेटा लिखने की बात नहीं है, प्लीज ध्यान से समझो, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिखाऊंगा आपको, मैं समझा इसलिए इसको भी दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट भी लेना। प्लीज समझो क्या बोल रहा हूं, प्लीज डोंट राइट एनीथिंग ऑन योर कॉपी राइट नाउ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाटएवर आई एम टेलिंग यू। देखो सबसे पहले क्या हुआ, डिस्कवरी ऑफ एटम हुई। डिस्कवरी ऑफ एटम के बारे में थोड़ा सा मैंने पिछले दिन डिस्कस किया था, पिछली क्लास में। इसका मतलब हुआ कि एटम जो था, इसकी अगर किसी चीज की डिस्कवरी की गई, उसका मतलब पता चला कि भैया ये चीज एग्जिस्ट करती है, मतलब ये चीज उपस्थित है। ऐसा नहीं कि एटम नहीं एग्जिस्ट है, मतलब एटम के बारे में पता लग चुका है कि एटम कोई चीज होती है,
ऐसा तो पता लग गया। अब जैसे कोई गांव में, अब जैसे कोरोना वायरस आया, तो अभी कोरोना वायरस के बारे में क्या हुआ कि सबसे पहले तो ये पता चला कि कोरोना, अब जैसे पिछली बार मार्च में ये पता चला था, मार्च में पता चला ना बेटा, मार्च या फिर हमें फेब में पता चला 2020 में। सर सर दिसंबर जैन में पता चला था सर, जैन में आया था। ओके, म्यूट योर माइक बेटा, म्यूट योर माइक, प्लीज लिसन, म्यूट योर माइक, प्लीज लिसन। देखो जैसे मार्च 2020 में ये पता चला कि कोरोना वायरस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब कोरोना वायरस एग्जिस्ट करता है इतना तो पता चल गया, वैसे डिस्कवरी ऑफ एटम तो हमें पता चल गई थी कि कोई एटम भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद 2020 के बाद धीरे धीरे नए नए साइंटिस्ट आज आए। के दिन सर मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया था। हाँ ओके ओके, तो बेटा ऐसे धीरे धीरे अब क्या हुआ कि चीजें जो हैं बढ़ने लगी। अब नए नए साइंटिस्ट आए, स्टार्ट में कुछ नहीं पता था, वैसे स्टार्ट में एटम भी था, एटम के बारे में कुछ पता नहीं था लोगों को। अब जैसे अब एटम को अगर आप कोरोना वायरस से एक तरीके से, अगर कोविड से अगर इसको रिलेट करो, तो सबसे पहले एटम के बारे में पता चला था, वैसे कोविड के बारे में भी कभी पता चला। तो एटम तो रिसर्च हो गई कि हाँ भैया एटम एग्जिस्ट करता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ये मैंने बताया था पिछली क्लास में। नो सर, नो Okay, सर, आपकी इस क्लास- क्लास में बताओगे सर आप? नो सर, आपकी क्लास में अभी नहीं बताया, कोई बात नहीं। चलो आपको मैंने बताया था एटम क्या होते हैं, कितने, ये मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, तो बताया था ना। यस सर। ओके, तो ये पता चल गया कि हर मैटर के पास एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट, उसको बोलते हैं एटम, इतना पता चल गया। वैसे मार्च 2020 में हमें पता चला था कि कोई एक वायरस है जिसको लगने से आदमी को छींक आ रही है, खांसी आ रही है और नॉर्मली बुखार आ रहा है, ऐसा पता चला था, और कुछ लोग मर भी जा रहे हैं, ऐसा भी पता चला था जब हम मार्च 2020 के आसपास थे। सर मार्च में नहीं हुआ था सर। ओके प्लीज वेट बेटा, मार्च नहीं होता, दिसंबर में हुआ था, प्लीज वेट यार, ट्राई करो कि अंडरस्टैंड करो ना जो मैं बता रहा हूँ। दिसंबर में हुआ था या अगस्त में हुआ था, क्या फर्क पड़ता है, जब भी हुआ था मैं एक थियरी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज अंडरस्टैंड। तो अभी जैसे कभी पता चला, मान लो इन्होंने बताया कि दिसंबर में पता चला, कोई बात नहीं, तो पता चला दिसंबर में कि भैया कोविड एग्जिस्ट करता है, और एटम को भी मान लो 1850 में पता चला कि, वैसे 1850 की डेट नहीं है, ये मत लिखना, ठीक है, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको कि एटम एग्जिस्ट करता है। अब क्या हुआ, अप्रैल में, मई में, जून में नए नए साइंटिस्ट आने लग गए इसको सर्च करने के लिए, लोगों की होड़ लग गई इसको सर्च करने के लिए। अब क्या हुआ, अप्रैल में कोई एक रिसर्च आई, आपने देखा होगा कि टीवी पे नए नए बड़े बड़े एग्जाम्पल आए, टीवी पे नए नए उस तरीके की थ्योरी आई, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में दिखा कि भैया जो एटम है, सॉरी जो कोविड है उसका आकार ये है, कोविड का आकार वो है, कोविड ऐसे है, कोविड स्ट्रेन ले रहा है, उसके नई नई वैरायटीज पता चली। बाद में लगा कि नहीं ये सब चीजें नहीं है, कुछ लोग कह रहे थे ड्रिंक करो तो खत्म हो जाएगा, कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ बहुत सारी दवाइयां थी, लोग कह रहे थे ये दवा लो तो खत्म हो जाएगा, काढ़ा ले लो खत्म हो जाएगा, काढ़ा पीने के बाद स्टीम ले लो खत्म हो जाएगा। ओके सो कुछ लोग बोले कि काढ़ा ले लो खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं बिल्कुल। तो फिर नहीं, अगर काढ़ा से खत्म होता, अभी तक पीना पड़ता है सर, काढ़ा से अगर खत्म हो जाता बिल्कुल, तो अब तक तो मतलब कोई मरता ही नहीं इंडिया में। लेकिन काढ़ा, मेहनत ही क्यों करते हैं? सर नींबू का रस नाक में डाल लो। हाँ ऐसा है, नींबू का रस नाक में डालो तो नई नई सर चीजें उससे आई। एक ठीक death है, हो सर, गई। scientist सर, है। नींबू का Wait, रस नाक में बेटा, डालने से किसी की डेथ हो गई थी। हाँ, सर। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट सर किसी टीचर की डेथ हो गई थी सर, नाक में नींबू का रस डालने से। ओके बेटा, ओके वी विल डिस्कस यार, एक दिन हम एक मजेदार कोई दिन रखेंगे, उस दिन आपके साथ बैठूंगा और जनरल केमिस्ट्री के बारे में बात करूंगा, और आपसे बहुत ये सब सारे लिखना नहीं है ना सर? नहीं लिखना नहीं है बेटा, समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, प्लीज समझो इसको। तो हुआ क्या कि बेटा, अब जैसे एटम, वैसे ही क्या हुआ कि जब एटम के बारे में पता चला कि नया नया मार्केट में कोई बात आई है केमिस्ट्री में कि भैया एटम एग्जिस्ट करता है। अब एटम एग्जिस्ट करने के बारे में पता चल गया, अब लगे साइंटिस्ट, क्योंकि अगर जो एटम के बारे में सर्च कर देगा, जो बता ले जाएगा कि एटम क्या होता है, जो उसकी प्रॉपर्टीज बता ले जाएगा, उसको बहुत सारा पैसा मिलेगा। तो अब अपने अपने साइंटिस्ट अलग अलग लग गए, इसीलिए लगते भी है, साइंटिस्ट जो पहले निकाल देता है उसको नोबेल पुरस्कार मिलता है, गोल्ड मेडल मिलता है, इसलिए नए नए साइंटिस्ट लग जाते हैं तुरंत स्टडी पे। उनको कोई नहीं कहता कि तुम लगो, वो जल्दी से तुरंत काम करना स्टार्ट करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वो अपना नाम चाहते हैं। आज हम डाल्टन का नाम क्यों जानते हैं? अब बताओ, कोई किसी रमेश का नाम तो नहीं लिखा है कि रमेश की थ्योरी बताओ, लेकिन डाल्टन का नाम आज आपकी थ्योरी में या आपकी बुक में लिख दिया गया है। वैसे अगर कोविड को किसी ने एक तरीके से कोविड की दवा निकाल दी प्रॉपर तरीके से, मान लो कि भैया एक टैबलेट खाओ और खत्म हो जाएगी। Please wait, you have only 10 minutes. Please wait, you have only 10 minutes. Please wait. अब जैसे कोविड की किसी ने दवा निकाल दी कि भैया एक टैबलेट खाओगे और खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा? इसका मतलब उसका नाम आगे चल के कहीं ना कहीं वो दर्ज हो जाएगा,
लोगों को पता रहेगा, जो आज के 20 साल 25 साल बाद भी जन्म लेंगे, उनको पता रहेगा कि हाँ कोविड कोई चीज था और उसको इस बंदे ने खोजा हुआ था, और मे भी वो जीवित रहे तो उसको सब मानते भी रहे, सॉल्यूट भी करते रहे। इसीलिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, अभी किसी ने पूछा था कि साइंटिस्ट रिसर्च क्यों करते हैं। Sir, who is the founder of COVID vaccine? क्या बेटा? Sir, who is the founder of COVID vaccine? बेटा different founders of COVID vaccine. One founder is in America, one founder is in India. Number of, जैसे in India Serum is, yes बेटा। Sir, जिसने Sir, सर anybody सबसे about पहले the discover founder किया। of कोविड वैक्सीन, बट सर कोविड वैक्सीन जो है सर वो बहुत सारी एजेंसीज ने मिलकर बनाई है। हाँ बेटा, this is not the specific thing कि कोई एक बंदा या कोई किसी एक साइंटिस्ट ने बोल Sir, दिया। every Please country listen has यार, their- whatever I am trying to say about the atom, just your topic is about atom. I am not just gossiping in the class. Please try to understand whatever I want to try and I am just telling about the atom. So please try to see now. You have only 10 minutes or 15 minutes remaining and you are just asking number of things like that. I am also trying to make it just interesting and also interactive session. So please cooperate with me ना बेटा। सो अगर अब जैसे क्या हुआ, डाल्टन जी लग गए कि अब भैया जैसे ऐसे डॉक्टर जैसे कई सारे लग गए होंगे, मतलब डाल्टन था, कोई मान लो कोई दूसरा साइंटिस्ट रहा होगा, जैसे जैक रहा होगा, जोन्स रहा होगा, या फिर पीटर रहा होगा, इंग्लैंड रहा होगा, बहुत सारे मान लो अलग अलग, या फिर जॉकी रहा होगा, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट रहे होंगे जो लग गए होंगे कि एटम को सर्च करते क्या होता है और मैं पुरस्कार लेके जाऊंगा, मेरा नाम दर्ज करूंगा। लेकिन डाल्टन जी ने इसको स्टार्ट करके बता दिया। अब डाल्टन जी ने इसको निकाल दिया कि भैया इसमें कुछ क्वालिटीज हैं, इन्होंने सर्च किया तो जैसे मान लो इनको क्या हुआ कि 10 क्वालिटी, इनको राइट मत करना, केवल मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में लिखाऊंगा भी। तो जैसे इनको मुझे सर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर इसी पर। ओके, जैसे क्लास खत्म होगी उसे पूछ लेना बेटा, प्लीज इसको समझा देना बस, प्लीज सर, खत्म ये कर लिखना देना। नहीं लिखना बेटा, नेक्स्ट क्लास में लिखाऊंगा, आपको लिखना ही समझना है केवल बस। अब डाल्टन के बारे में कल बताऊं तो आपको ये नहीं पूछना कि सर कैसे ये क्या है क्या वो, इसलिए मैं समझा दे रहा हूँ इसको, ठीक है? तो प्लीज लिखना मत, आप समझ लो बस। अब जैसे क्वालिटी, इन्होंने 10 क्वालिटी निकाली, मान लो क्वालिटी नंबर ए, क्वालिटी नंबर बी, क्वालिटी नंबर सी, क्वालिटी नंबर डी, मान लो ई एफ, ऐसे 10 पॉइंट उन्होंने बताए। अब मान लो इसकी स्टडी तुरंत होना स्टार्ट हुई। अब जैसे कोई भी साइंटिस्ट आएगा, मान लो कोविड वैक्सीन आएगी, मान लो किसी ने कोविड का टैबलेट बताया, मान लो कोई रमेश नाम का कोई साइंटिस्ट है और उसने, इंडिया का साइंटिस्ट है, और उसने बताया कि भैया कोविड वैक्सीन जो है, अगर हम एक पुदीना की गोली खा लें तो कोविड जो है खत्म हो जाएगा। अब मान लो उसने बता दिया या उसने रिसर्च कर ली, तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो सीधे बुक में राइट हो जाएगा। उसको सबसे पहले खा के 4 से लोग देखेंगे, उसको सर्च करेंगे, देखने के बाद पता चल पाएगा कि हाँ इससे लोग सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो कितने % हो रहे हैं, और नहीं हो रहे हैं तो कितने % नहीं हो रहे हैं। देखो अगर ये 100% इफेक्टिव है, अगर पुदीना की गोली 100%, बेटा आई एम जस्ट टेलिंग यू, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप कोविड के लिए जाके आज पुदीना की गोली खाओ, मैं बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? हेलो, यस सर। हाँ तो बस मैं बेटा बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके समझ में आए। अब जैसे मान लो किसी ने बोला कि सर 100, अगर आप एक पुदीना की गोली खा लो तो आपका कोविड सीधे खत्म, कोविड मतलब खत्म, कुछ नहीं, कोविड-19 मतलब 0, ठीक है? अगर आप एक पुदीना की गोली खा लो। लेकिन अब अगर खाया मान लो 50 या 100 लोगों ने खाया, अब 100 में मान लो 80 ठीक हो गए और 20 जो है 20 को प्रॉब्लम आ रही है अभी भी, तो इसका मतलब 20 में कोई दिक्कत हो रही है, मतलब कुछ ऐसा पॉइंट था या कुछ ऐसी चीज थी जो ये साइंटिस्ट नहीं बता पाया। अगर वो भी हम पुदीना के साथ मिला देते तो शायद 100 के 100 जो पेशेंट थे 100 के 100 कोविड से सही हो जाते। तो इसीलिए क्या होता है, जैसे डाल्टन ने क्या किया, डाल्टन ने बताया 10 पॉइंट, मान लो बताया, 10 नहीं बताया है, बहुत सारी चीजें बताई हैं, लेकिन मैं एक इज्यूमशन 10 पॉइंट मान लो इन्होंने बताए, ठीक है? अब 10 पॉइंट बताए तो इस पे रिसर्च हुई, अब रिसर्च हुई इस पे, अब रिसर्च में पता चला कि 7 पॉइंट तो इनके सही हैं, तो 7 पॉइंट तो क्लियर कर लिए गए, इससे हमें बहुत सारे फायदे भी हुए और उसको हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन 3 पॉइंट जो थे, 3 पॉइंट यार इनके सही नहीं थे, ये दिक्कत है कुछ इसमें, तो ये भी राइट कर लिए गए। तो इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, डाल्टन थ्योरी में जो गलत चीजें थी या फॉल्स एज्यूम्पशन ऑफ डाल्टन थ्योरी, और जो 7 पॉइंट सही हुए उसको क्या बोलेंगे बेटा? ये सर डाल्टन सर है क्या? Dalton is a scientist, like Ramesh is a scientist. Dalton was okay, I understand. Dalton was searching about the atom, like Ramesh is searching about the COVID-19. Are you getting me? I understand.
Everyone is getting me, beta. Hello. We are getting. Yes, sir. बेटा अगर Yes, sir. बेटा किसी को समझ नहीं आता, अरिदमान प्लीज बताओ, आप प्रेज हैंड कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? नहीं सर, क्लियर है सर, बढ़िया क्लियर है किसी सर, को बस कोई सर नोट नहीं कर रहे सर हम अभी। नहीं नोट करना ही नहीं है बेटा, मैं तो समझाने के लिए बोला था। अभी जैसे आपको डाल्टन ही नहीं पता चला इतनी देर में कि क्या होता है डाल्टन, तो डाल्टन इज अ साइंटिस्ट। जैसे रमेश ने स्टार्ट किया कोविड-19, और ये भी मत समझना कि रमेश ने कोई कोविड-19 वैक्सीन ढूंढी है और उसका कुछ नाम है पुदीन हरा। तो मैं बताने की कोशिश कर रहा था आपको कि कोई चीज ऐसे निकल के आती सर है। मैं केवल इमेजिन कर। हाँ, यू हैव टू जस्ट इमेजिन दैट कि अगर उन्होंने ऐसे बताया कि 10, अगर मान लो 10 पॉइंट निकाले या बोला कि भैया 100% पुदीन हरा सही है, तो उसको 100 लोगों को हम खिलाएंगे और देखेंगे कितने सही हुए कितने सही नहीं हुए। अब मान लो 80 लोग सही हो गए, 20 लोग सही नहीं हुए, इसका मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत थी। दो चार एंटीबायोटिक अगर और मिलाते उसमें तो शायद 20 के 20 और सही हो जाते। तो आगे स्टडी बढ़ती। सर कुछ उसमें ऐसा भी तो होता है कि सर पर्सन की बॉडी में कुछ डिफेक्ट होता है। हाँ, मान लो कोई दिक्कत भी हो सकती है उसमें, तो वो भी रिसर्च होगी ना। तो वैसे क्या हुआ बेटा, सबसे पहले क्या हुआ, डाल्टन आए। डाल्टन ने क्या किया, रिसर्च की ऑन एटम पे रिसर्च करी। अब इन्होंने क्या किया, एंड अपने पढ़ने के लिए सर पूरी थ्योरी बन गई केमिस्ट्री में। या एंड गिवन सम पॉइंट्स, राइट नहीं करना, बस बता रहा हूं, ठीक है। मैं इसकी रिकॉर्डिंग देख दूंगा, आप उसमें एक बार देख भी लेना, रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सो एंड गिवन सम पॉइंट, उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए। अब सम पॉइंट्स वेर गुड, लाइक सम पॉइंट्स तो चलो ठीक है, कुछ पॉइंट था मैचिंग थे, एंड सम पॉइंट्स वाज नॉट गुड, मतलब कुछ इसमें 30% चीजें मान लो रह गई, या मान लो इन्होंने 5% बताया, 5% सही था और 95% गलत था। मान लो अगर ऐसा भी होता तो अब क्या होगा, 5% तो कैलकुलेटेड हो गया होगा हमारी केमिस्ट्री में, और हमारे लिए पढ़ने के लिए हो गया कि भैया हमें पता है, अब हमें रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं है कि एटम में ये 5% चीजें कैसे आएंगी। हमें पता है डाल्टन ने बताया जो वो सही है और वो वेरीफाइड है, लोगों ने इसको वेरीफाई करके हमें बताया हुआ है। डाल्टन का जो डाल्टन सर का मॉडल है उसको लोगों ने बताया हुआ है हमने, कि भाई बताया हुआ है हमें कि वो 5% चीजें एक्यूरेट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम उन 5% चीजों पे कभी डिस्कस नहीं करेंगे, बस जानेंगे कि हाँ वो 5% चीजें केमिस्ट्री में क्या है। लेकिन जो 95% चीजें हैं उन पे भी फर्दर स्टडी होगी। अब जैसे डाल्टन ने किया, फिर आगे कौन करेगा, मान लो कोई रामू है। हमारे सर मॉड्यूल में तो सर के लिए सर यहाँ पे लिखा है मेरिट और डिमेरिट। तो बेटा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने भी बोला था मैं अक्सर केवल मॉड्यूल का पढ़ाओगे या एक्स्ट्रा पढ़ाओगे, अब मैं एक्स्ट्रा भी बता रहा हूँ चीजें, तो आप बोल रहे हो मॉड्यूल का वही केवल नहीं बोल रहे हो। तो आप समझो ना चीजों को जो भी बता रहा हूँ। आपको समझ में आया क्या बोला मैंने? यस बेटा मॉड्यूल तो देखना नहीं है, क्यों मॉड्यूल देख रहा है, जब घर पे बैठना तो मॉड्यूल देखना, अभी क्लास चली तो क्लास में देखो ना, मॉड्यूल देखने की क्या जरूरत है आपको। अभी क्लास में देखो जो भी चल रहा है, जो पढ़ा रहा हूँ मैं, एक एक चीज खुद ही क्लियर कर रहा हूँ, तो मॉड्यूल देखने की तो जरूरत ही नहीं है। बेटा क्या सारे के सारे बच्चों को समझ में आया आज मैंने जो बताया, डाल्टन क्या है, कैसे? बढ़िया समझ में आया मुझे। Yes, sir. बेटा क्या हर्षवर्धन सिंह को समझ में आया? सर 100 में से 99 लोग means ठीक हो जाते हैं अगर किसी भी चीज से, तो सर क्या उसको अप्रूव किया जाता है 100% के हिसाब से? बेटा वैसे तो हाँ किया जाना चाहिए, लेकिन मे बी कोई ऐसा आया, मान लो इसमें आपके स्टूडेंट, आपका नाम क्या है? ओजस। मान लो अभी आप बोल रहे हो कि ठीक है, मान लो कि इसको 100% कर देना चाहिए अप्रूव, ठीक है। लेकिन मान लो कोई मान लो निकुंज आया, निकुंज शर्मा कोई है क्लास में, हाँ। अब मान लो आपके साथ वो भी साइंटिस्ट है, या फिर कोई अर्णव है साइंटिस्ट, अर्णव चतुर्वेदी। अब मान लो वो भी साइंटिस्ट है, अब वो बोला कि सर जी ये गलत बता रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कत है, 99 है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इसमें, हम इसको निकालेंगे और सही से, और हम इसको बताएंगे और सही से। तो मैं बोलूंगा ठीक है बेटा, अगर तुम सॉल्व कर सकते हो, अगर तुम कुछ नई चीजें ला सकते हो तो यू कैरी ऑन। तो भले ही तुम बेटा जो ओजस होगा वो बोलेगा कि नहीं मेरा ही 100% सही है, लेकिन फिर अगला वाला भी रिसर्च देगा, और फिर अर्णव का रिसर्च और फिर आपका रिसर्च मिलाया जाएगा। अगर अर्णव अगर सर मेरा रिसर्च सर अर्णव का रिसर्च सर 100% लोगों को सही कर रहा होगा तो सर उसको वो लोग ले लेंगे ना। हाँ, अगर अर्णव का रिसर्च हो जाएगा 100% सही, तो मान लिया जाएगा कि हाँ ये सही है। लेकिन एक चीज हमेशा रहेगी, Can we leave now? नो बेटा यू कैन नॉट लीव राइट नाउ, प्लीज वेट, यू कैन नॉट लीव, प्लीज वेट।
सो अगर अर्नो और दो बच्चे हैं, अगर मान लो अर्नो या ओजस है, अब मान लो निकल तो गया अर्नो का कि पॉइंट और भी आ गया अर्नो के पास, तो ये चीज तो अच्छी हुई, चलो अर्नो का नाम दर्ज हो गया। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, हमेशा ये चीज बोली जाएगी कि ओजस ने इसको पहले सर्च किया था, क्योंकि जो मॉडल था ना, जो लेबोरेटरी के अंदर सबसे पहले लेके आया था ना कोई 100 पॉइंट 99 पॉइंट, वो पहला बंदा ओजस था, पहला लड़का ओजस था। अगर ओजस नहीं लेके आता ना तो अर्नो में वो क्यूरियोसिटी नहीं आती कि वो सर्च करता। इसी तरह से डॉल्टन लेके आया कोई मॉडल, उसके बाद जब डॉल्टन आया, डॉल्टन ने थोड़ी बहुत चीजें बताई, उसके बाद बाकी लोग आए, उन्होंने भी कुछ अपनी थ्योरी बताई। तो ये चीज ध्यान देना, जो पहले थॉमस एल्वा एडिसन ये सब। हाँ नहीं, थॉमस एल्वा एडिसन ने तो एटम नहीं बताया बेटा, उन्होंने तो बल्ब के लिए बताया, लेकिन जो एटम के लिए बताए हैं ये लोग अलग हैं, इनकी सीरीज अलग है। मतलब एग्जांपल बोल रहा हूँ ऐसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे थॉमसन ने सर बताया। मेरा एक सर डाउट है कि सर ये डेल्टन डॉल्टन है बेटा ये डॉल्टन है, डॉल्टन। आपके सर मॉड्यूल में तो सर डॉल्टन सर इट्स डाल्टन, इट्स अ डाल्टन। व्हाट इज डीए लिखा है सर मॉड्यूल में, डी। ओके देन डी है, देन डाउट। बोलो बेटा बोलो। तो सर पहले एटम की डिस्कवरी किसने की थी, डाल्टन ने या महर्षि कनड ने? बेटा महर्षि कन्नड़ ने ये तो बताया कि एटम क्या होता है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज नहीं बताई। महर्षि कन्नड़ को ये तो पता चल गया कि महर्षि कन्नड़ ने केवल ये बताया कि एटम ये है, ये चीज है, एटम में कोई चीज प्रेजेंट है। अब मान लो एंड सर ल्यूसीफस और एक और कोई साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी कुछ बोला था। उन्होंने भी सबकी अलग-अलग चीजें हैं बेटा। बेटा जैसे कोविड-19 ही आया तो बेटा मान लो चीन का कोई वैज्ञानिक था जिसको स्टार्ट में कहा गया कि वो मारा गया, तो मान लो उन्होंने एक चीज बता दी कि कोरोना वायरस होता क्या है, लेकिन आज जो वैक्सीन आई हैं, आज नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है बेटा। जस्ट वेट ना, अगर हो भी चुका है तो जस्ट वेट, प्लीज जस्ट वेट, नो प्रॉब्लम। आई एम जस्ट नॉलेज सुनने के लिए सर ऐसे कर रहे हैं सर। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब जैसे मैं बता रहा था कि जैसे मान लो कोविड वैक्सीन आ भी गई ना बेटा, तो उसमें क्या हुआ कि अब जैसे कोई नया आ गया, मैं बोल कर रहा था, आपने कंफ्यूज कर दिया, कुछ बोलने वाला था। चलो हाँ, ये सुनो, वेट। हाँ, जैसे चाइना का साइंटिस्ट था, उन्होंने बता ही दिया कि चलो कोविड-19 का कोई वायरस है, लेकिन उन्होंने केवल इतना बताया कि भैया कोविड-19 कोई वायरस है बस, और वो चले गए। उन्होंने कोई ना स्टडी दी, ना कोई चीज बताई, ना कोई चीज उनके बारे में बताया, ना उनका नाम बताया, कुछ नहीं। लेकिन आज जिन्होंने वैक्सीन निकाली है उनका नाम कुछ नहीं बताया। आज जिन्होंने वैक्सीन निकाली उन्होंने बताया कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी स्ट्रेन कितने हैं, कैसे उससे बचा जा सकता है, कैसे उससे भागा जा सकता है, तो आज के लोगों ने बताया। वैसे एटम में भी है बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा डॉल्टस ने क्या बताया, ठीक है। मगर सर नाम सर उन्हीं का लिया जाता है सर जिसने सर बताया कि सर कोरोना वायरस नाम का ये डिसीज है, इसीलिए तो ऋषि कन्नड़ का नाम पहले दिन लिखाया था मैंने। यस सर। ठीक है, अभी क्लोज करें, कोई दिक्कत तो नहीं क्लास में आज? पता कैसे चला सर इसका नाम? यस सर। बेटा आज क्लास क्लोज करें। यस सर। बाय सर। यस सर। बाय बेटा, सबको सही रहा। थैंक यू सर। और आज एनोटेट नहीं करना है।